Welcome to DRTSPR show. This is Dr. Tangella Shiva Prasad Reddy alias Dr. DRTSPR. Namaste, Adab, hello and a warm welcome to the community medicine Bhishmacharya, Dr. Amitabh Banerjee. And what a wonderful day to meet when we say we pray to Lord Vigneshwara. Adi Moola Mahaganapati Bhagavane Sharanamayappa we say when the Diksha. So he is the first God we pray as a Hindu for any puja or any official ceremony or religious ceremony. So, by taking the name of Lord Ganesha, we are invoking his blessings on me and my wonderful guest Amitabh Banerjee's families, alongside all the Indians and the world apart. Let them stay healthy. With health, you will get happiness. That is the reason why we pray to God to see that he bestows that good thinking habits to all politicians, all administrators, their connected media, and the so-called government officials, including Indian Council of Medical Research and Director General Drug Control of India, all the state governments, all the people of India, the citizens of India. You should start thinking, because no one does anything like charity when it is happening from a corporate who has already tasted success, economic success. That means जब जो पैसे की इसमें ही धुन में ही जब जाते हैं एक व्यापारी, किस तरह वो लोग कमाते हैं, वो पैसे की सोच ही रहेगा। और उस सोच में अगर हम हमारी स्वास्थ्य और हमारी सक्षमता उनको सौंपे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। खुशी से हम जो जी रहे हैं वो खत्म हो जाएगी। इसीलिए चौकन्ने रहना चाहिए। यही हमारे संदेश है आज गणपति को लेकर, ताकि सद्बुद्धि दे हमारे राजनीति दल को, सभी को, और हमारे अधिकारीगण, उनके मित्र मीडिया, हम जैसे सभी को, और सभी नागरिकों को, ताकि हम सुरक्षित रहे स्वास्थ्य के मामले में। क्योंकि स्वास्थ्य जो है हमारी खुशी है, और हमारी स्वास्थ्य खुशी जो है, हम जो पीते खाते जिस तरह रहते हैं उसी से आता है, होता है। मतलब केनेडी जो यूएस सेक्रेटरी, हमारे अमिताभ बनर्जी उनको कमांडो कहते हैं। यस, ही इज आवर कमांडो टिल नाउ। If there is any wrongdoing, we are not going to spare anyone. Again, Amitabh Banerjee will start playing rapid chess or T20. Or if it is T10 also, he will be ready to play with that. So that is in all public interest, because our shows are clearly based on evidences. आधार के साथ ही हम शो करते हैं। किसी निजी मामले में या पार्टी या कोई संगठन के हम विरोध है ही नहीं, क्योंकि जो भी अंश है वो संविधान, कानून और आधार के तौर पर ही चलता है। Shows run purely on evidences as per rule of law, constitution, invoking evidential act. No enmity against individuals, nor animosity against any parties or organizations. My number is 9440465339. I can connect you from anywhere, and my guest also will be ready, because we take up such issues. Now, Bill Gates and Modi. Before that, UPA, Manmohan Singh, Sonia Gandhi. What is this association they have? They have been elected by the people of India. They are our public representatives. But how come a public representative is representing a corporate like Bill Gates, who doesn't understand anything? He is not well read. Maybe he is successful in Microsoft, that business. And that business also, you see how he is trying to blackmail and hold on to entire world. India, we have boss by what should I say, ISRO, but we don't want to use the technology. It's a shame. And through that, he controls the our entire data is there in America or somewhere else. Mr. Modi doesn't understand. And Rahul Gandhi, you are going around, first check that. Why? Because this man making profits, huge profits out of Microsoft, but after that, under corporate funding and corporate taking care of the entire world, stating it is a service, how badly he has penetrated into
the health aspect. That is why I said, is BJP, all political parties, including Congress, are you public representatives or representative of Bill Gates, Public Health Foundation of India, instead of Union Ministry of Health, State Health Ministries running the administration when it concerns health? And health is my right, bloody who the hell you are, we say to Gates and all Public Health Foundation of India, because he doesn't understand the nomenclature of medicine. Medicine means the entire human being and his surroundings, and how they react individual. It is individual perspective. That is why after COVID-19, through this social media, now the world has awakened. So today's show, I'll just show this Kennedy statement before I ask how did Bill Gates manufactured profits out of COVID-19 vaccines? How he has invested before COVID-19 started, and after all the hangama started happening, side effects when people were dying, incapacitated, how he took money out from there and he got World Health Organization on his side, and how he is trying to again go for another vaccines without understanding nature and natural immunity. If you question him what he is taking, whether he takes these vaccines, whether he takes laboratory supplied food, then you'll understand. Those who preach, they don't practice. They are against Gandhian principles of non-violence. You preach whatever you practice, or else you practice whatever you preach. Diagonally apart. And why Modi is still continuing? Modi was the chief minister of Gujarat. Likewise, Y.S. Rajshekar Reddy was the chief minister of Andhra Pradesh. When UPA regime under Sonia Gandhi and Manmohan Singh, they started to deflate, move away the responsibility from the government of health, the public health concerning every Indian, to Public Health Foundation of India. That is where Bill Gates started to invest, and first they started with the same HPV vaccine on innocent Girijan SC/ST tribes in both Gujarat and Andhra Pradesh. The proof is 72nd Joint Parliamentary Committee report. Till today, no government has bothered to put that into practice. Had they taken this into cognizance, Bill Gates would have been arrested. Rather, he is entering the temple of democracy, our parliament, and the same HPV vaccine again is being promoted by Modi government. And I am warning all those senior actors and all who are trying to advertise, tomorrow you are going to face the music. Simply every Indian will understand what does this vaccine contain, and what this disease is all about, and what this cancer is all about. Can't that be controlled by regular good habits, exposing to sun, eating good food, and being happy? When they understand this logic, they will start questioning. It was a long intro. Sorry, I wanted to make my guest also comfortable so that we don't brook any nonsense from anyone. I'm just trying to play. Yeah. Because we go by evidences. RKF Junior exposes Bill Gates COVID pump and dump scheme. So our title will be the same, pump and dump. Will Modi is going to be aware of this? Robert Kennedy Jr. revealed how Bill Gates bought 1.1 million shares of BioNTech, the company that partnered with Pfizer right before COVID hit. See, right before COVID hit. And then, because this is there in the public domain, let us listen to him. Because we go by evidences. Bill Gates, by Fauci, and by Abel Hayes. And interestingly, by George Gale, who is the head of the Chinese CDC in New York City. And any of you, I'm sure a lot of you have gone and looked at this on YouTube. It's called Event 201. And the fourth simulation that day, the last one,
is all about how we use the pandemic as a pretense for clamping down for abridgments of freedom of speech, and particularly, how do you stop people from talking about lab leak as a source of these bugs? So this is in October 2019, and the last one of these was in 2020 or 2019 October. And it was hosted by Bill Gates, by Fauci, and by April Hayes. And interestingly, by George Gale, who is the head of the Chinese CDC in New York City. And any of you, I'm sure a lot of you have gone and looked at this on YouTube. It's called Event 201. And the fourth simulation that day, the last one, is all about how we use the pandemic as a pretense for clamping down for abridgments of freedom of speech, and particularly, how do you stop people from talking about lab leak as a source of these? Yeah, first we'll come to is very clear as to how Fauci, Bill Gates, and even CIA director, and then the CDC head of China, a Chinese, how they have gone and what they have done. Sarji, I'll play one by one. ये तो इन्होंने किताब भी लिखा है, द रियल एंथनी फॉची। उसमें पूरे एविडेंस के साथ रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर ने पूरा एक्सपोज किया है। एंथनी फॉची, बिल गेट्स कनेक्शन, WHO कनेक्शन, पूरे रेफरेंसेस के साथ बेस्ट सेलर था। 2 साल से अमेरिका में बेस्ट सेलर है और अभी तक उनको कोई चैलेंज नहीं किया है। अगर उसमें थोड़ा भी ये रहता है, गलत डिफेमेशन रहता है, तो उनको कोर्ट में ले जा सकते थे। दैट इटसेल्फ शोज दैट दे हैव बीन प्रॉफिट इज द मोटिव, एंड इनका जो नेक्सस है दैट इज फॉर प्रॉफिट ओनली। गेट्स, एंथनी फॉची, WHO और भी फार्मा इंडस्ट्री, फाइजर के साथ सेज है और बाकी सभी के साथ। ये बायोनटेक बोले हैं, हमारे इंडिया में भी जो दोनों मेजर वैक्सीन इंडस्ट्रीज है, सीरम इंस्टीट्यूट के साथ भी पार्टनरशिप है बिल गेट्स का, और भारत बायोटेक के साथ भी है। और हमारा जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, विच इज़ सपोज टू बी अ गवर्नमेंट बॉडी, इंडिपेंडेंट बॉडी, उसके साथ भी गेट्स फाउंडेशन का लेटर ऑफ इंटेंट फॉर रिसर्च साइन किया हुआ है। और हमारा जो पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया को भी स्टार्टिंग में गेट्स फाउंडेशन ने सीड मनी दिया था। उसके अलावा 2017 तक दी नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी ऑन इम्यूनाइजेशन, दैट वाज, उनका जो सेक्रेटेरिएट है वो पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया में था, एंड द सेक्रेटेरिएट ऑफ नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी ऑन इम्यूनाइजेशन, जो कि वैक्सीन पॉलिसी करता है, वो सेक्रेटेरिएट को फंडिंग बिल गेट्स कर रहा था। हमको ये नहीं समझ में आता है कि 217 तक क्यों गेट्स फाउंडेशन से फंडिंग, जो कि हमारा इंडिपेंडेंट बॉडी होना चाहिए, प्रोफेशनल बॉडी होना चाहिए, वाई सेक्रेटेरिएट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास इतना पैसा नहीं है कि अपना सेक्रेटेरिएट खुद चलाए। और जब बाद में ये पॉइंट रेज किया गया था, तो उन्होंने अभी 2017 के बाद एंटागी का डीलिंग कर दिया गेट्स फाउंडेशन। पर आज भी जो टेक्निकल सेल है इम्यूनाइजेशन का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इम्यूनाइजेशन का जो टेक्निकल सेल में अभी भी गेट्स फाउंडेशन का रोल है। इट इज़ स्टिल फंडिंग द टेक्निकल, या कुछ ऐसा वर्ड, थोड़ा वो वर्ड प्ले है। तो हमारा जो इम्यूनाइजेशन है, इट इज़ टोटली कंट्रोल बाय बिल गेट्स। और अभी मैं देख रहा था 22 अगस्त को पार्लियामेंट्री पैनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हैज़ made a statement that HPV vaccine should be expedited in the national immunization program। मैंने अभी आपको लिंक भेजा है, अभी देख रहा था मैं। और ये HPV वैक्सीन का, ये आज से 10 साल पहले 2013 को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने पाया था कि HPV वैक्सीन से ट्रायल के दौरान ही 7 लड़कियों का, ट्राइबल गर्ल्स का, गिरिजन लड़कियों का, यंग गर्ल्स 13-14 साल का डेथ हो गया था। बताइए, ट्रायल में अगर डेथ हो जाता है, और अभी हमारा
एडवर्स इवेंट्स इम्यूनाइजेशन जो है, फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन AEFI, जो दुष्प्रभाव होते हैं, उसके लिए मॉनिटरिंग सिस्टम अभी भी हमारे पास स्ट्रांग नहीं है। और जब ट्रायल में डेथ हो गया था, अब हमको ये नहीं समझ में आता कि ये एक पार्लियामेंट्री कमेटी ने, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने दोषी पाया था गेट्स कमेटी को, गेट्स फाउंडेशन को और ICMR को 2013 को फॉर अनएथिकल HPV ट्रायल्स, जिसमें कि डेथ हो गए थे। और किस हिम्मत से ये अभी जो नया पार्लियामेंट्री पैनल है, किस हिम्मत से वो रिकमेंड कर रहा है कि HPV वैक्सीन को पूरे कंट्री में फैलाना चाहिए और रैपिड ये होना चाहिए, जबकि अभी तक कोई ऐसा स्टडी नहीं है कि जो एंड आउटकम है कैंसर सर्विस को प्रिवेंट करता कि नहीं करता। ये जो जितने भी ट्रायल्स है ये इंटरिम मेजर्स पे लिए हैं कि HPV क्लियरेंस हो जाते हैं, HPV वायरस के अर्ली लीजन्स क्लियरेंस हो जाते हैं, पर ये गारंटी नहीं है कि कितना हमको प्रमोट करेंगे। और ये ऐसा कोई नहीं है कि, और गेट्स फाउंडेशन का तो इंडिया के ऊपर पूरा होल्ड है। इंडिया के ऊपर इतना बिल गेट्स का होल्ड है जितना कि रॉबर्ट क्लाइव का भी नहीं था कॉलोनियल टाइम में। मैं एक किताब काफ़ी दिन से पढ़ रहा हूँ, मेरे पास ये किताब है, ये है द बिल गेट्स प्रॉब्लम, ये भाई ये टिम स्वॉब, ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है। रेड्डी साहब इसको दिखाइए, फोकस कीजिए, ये एक किताब सेकंड में। सर, एक सेकंड, मैं बड़ा लगाता हूँ उसको स्क्रीन हाँ, पे ताकि लोग को तो जानकार हो जाए। हाँ, अब बताइए सर, इसमें अब बताइए ये पूरा बड़ा। देखिए, ये एक और किताब है। इसमें इसमें ये इट इज रिटन बाय अ इन्वेस्टिगेटिव ऊपर, जर्नलिस्ट और ऑफ ऊपर USA। लगाइए सर, भाई मैं फोटो खींचता हूँ ऐसा। हाँ, ऐसा ये लगाइए। ये आप ये, बोलिए ये आप। किताब ये किताब है टिम स्वॉब द बिल गेट्स प्रॉब्लम। ये देखिए, ये आईना टूटा हुआ है बिल गेट्स का। इसमें दिया है कि द रिकॉर्डिंग विद द मिथ ऑफ द गुड बिलियनर, जैसे वो कह रहे थे ना, कोई फ्री लंचेस नहीं कहते हैं, कोई बेमतलब कोई चैरिटी नहीं करता है। तो ये टिम सॉब इज अ लीडिंग इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ऑफ अमेरिका। उसने इतना मोटा किताब पूरा दिया है, जो बिल गेट्स कैसे वर्ल्ड को कैप्चर किया है, कैसे मैनिपुलेट किया है, कैसे एक्सप्लॉइट किया है, कैसे गलत नैरेटिव बनाया है अपना, कैसे उसने प्रेस को कंट्रोल किया है, पूरे मीडिया, इसमें अलग अलग चैप्टर्स हैं, अलग अलग चैप्टर्स है, पूरा मीडिया कंट्रोल है, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस कंट्रोल है। और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि एक पूरा चैप्टर इंडिया के ऊपर है। देखिए अमेरिकन जर्नलिस्ट, देखिए ये पूरा बहुत बड़ा चैप्टर है, सबसे बड़ा चैप्टर इंडिया में है कि बिल गेट्स के कारनामे क्या है इंडिया में। और इसने HPV वैक्सीन ट्रायल के बारे में भी डिटेल दिया है, 2009 को जो किया था, जो 7 डेथ्स हो गए थे, इसने पूरा डिटेल में दिया है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने दोषी पाया। और बिल गेट्स ने यह भी बोला कि ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज में हम HPV प्रमोट कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे कैंसर स्क्रीनिंग नहीं होता है, तो हम उसको ऐसे प्रमोट करेंगे कि इससे कैंसर प्रिवेंट हो जाएगा। जबकि HPV वैक्सीन मैन्युफैक्चरर भी कहते हैं कि वैक्सीन के बाद कोई गारंटी नहीं है, इसके बाद भी मेन प्रिवेंशन इज स्क्रीनिंग ऑफ सर्वाइकल कैंसर आफ्टर 40 ईयर्स 45 ईयर्स। तो ये ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज में ये HPV वैक्सीन के ऊपर है, कैंसर के ऊपर है, जो कि कहा है कि ये गेट्स का एरिया नहीं है, फिर भी इसने वेंचर किया है इसमें। और ऐसे प्रोपेगेंडा किया है कि HPV वैक्सीन का पूरा प्रचार किया है जितने डेवलपिंग कंट्रीज में है। तो इसमें मेरे को यही ताज्जुब लग रहा है कि ये अभी 2025 का किताब है, अमेरिकन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने इतना मोटा किताब अमेरिका में बैठ के पब्लिश किया है। अगर इसमें कोई चीज़ गलत होता तो बिल गेट्स इसको कोर्ट में ले जाता, इतना पावरफुल है। क्यों नहीं ले जा रहा कोर्ट पे? क्योंकि और कीचड़ उतलेगा, बिल गेट्स चुपचाप बैठा हुआ है। पर इंडिया भी सो रहा है, इंडिया के पॉलिसी मेकर्स सो रहे हैं। इंडिया के कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने बिल गेट्स का ऊपर सवाल नहीं उठाया, खाली रेड्डी साहब जैसे कुछ जर्नलिस्ट हैं, तंगेला रेड्डी और पर एटलीस्ट दिस बुक शुड बी रेड बाय ऑल पॉलिसी मेकर्स। ये मैं किताब रख रहा ऊपर हूँ, और इट थोड़ा इज ऊपर अवेलेबल। लगाइए सर, और थोड़ा ऊपर करिए ताकि मैं उनको, उनका भी स्क्वाब का, उनका ऑथर का भी हाँ नाम मैं ले सका हूँ, हाँ, क्योंकि ये ये मैंने अपने पैसे से खरीदा है, मिल जाता है अमेजोन में। सो दिस शुड बी विद द, एंड इसके ऊपर इंडिया का चैप्टर हर हमारे पॉलिसी मेकर्स को, हमारे हेल्थ मिनिस्टर को पढ़ना चाहिए, हर सिटीजन को पढ़ना चाहिए, और पार्लियामेंट में इस चैप्टर के ऊपर पूछना चाहिए। और नंबर टिम क्या है सर, स्वाब पेज नंबर क्या है वो भी बताइए, हम हाँ टाइटल में भी डालते हैं, ये पार्लियामेंट पेज पैनल जो प्रमोट कर रहा है। पेज नंबर 303 में पूरा इंडिया का चैप्टर है।
और इंडिया में कैसे उसने पूरा कंट्रोल किया है, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, एसपीवी ट्रायल्स, गावी वगैरह, और ये सब दिया हुआ है इसका। इंडिया को वो अपना लेबोरेटरी समझता है, ये तो स्टेटमेंट दे ही चुका है। ऑलरेडी दे और चुका ये है, शर्म की बात है। मोदी और उसको पार्लियामेंट ले जाता है और राहुल गांधी भी कोई बात ही नहीं करता है। मोदी बहुत को भी शर्म की बात अवार्ड दिया है इसने, मोदी को भी कोई अवार्ड दे दिया है, है। लाइफ टाइम अवार्ड इसने। लाइफ टाइम। तो ये देखिए, मैं बताता हूँ, लास्ट में इसने दिया है गेट्स फंडेड पूरा अवार्ड दिया है इसने। एसपीवी स्कैंडल दिया है इसमें। एसपीवी स्कैंडल 2025 को पब्लिश हुआ हुआ है, अमेरिकन खुद बोल रहा है, अमेरिकन के अगेंस्ट, बिल गेट्स के अगेंस्ट। और इंडिया सो रहा है, और इंडिया का पार्लियामेंट्री पैनल प्रमोट कर रहा है। हमारा डेमोक्रेसी के अंधा डेमोक्रेसी है, कानून तो अंधा था, अभी डेमोक्रेसी भी अंधा हो रहा है। एफसीआरए भी नहीं देता है, फॉरेन जो रेगुलेशन है, ये देखिए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, इसको भी बाईपास किया है, और सीधा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ कोई इसने अंडरस्टैंडिंग किया है। इसलिए आप देखा होगा, जब बिल गेट्स आया था, सीधा आरबीआई गवर्नर से मिल लेता है जाके। ये हाँ। देखिए कितना हमारा डेमोक्रेसी इस कितना कमजोर हो गया है। अभी देखिए, ये ब्रिटिश टाइम जैसा, कॉलोनियल टाइम जैसा हो गया। रॉबर्ट क्लाइव आके टुकड़े फेंक के, फिर ब्रिटिशर्स ने रूल किया, छोटे छोटे सल्तनत दे दिया। अभी ये पूरे इसने, नॉट ओनली ही हैज कंट्रोल ऑल पॉलिसी मेकर्स, ऑल साइंटिस्ट को कंट्रोल किया है। आईसीएमआर को कंट्रोल किया, आईसीएमआर को कोलैबोरेशन है, हमारे वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को फंडिंग कर रहा है, हमारे साइंटिस्ट को ग्रांट्स दे रहा है, हमारे साइंटिस्ट का कैरियर बन रहा है। बड़े बड़े जो मेडिकल कॉलेजेस, जो कि बहुत हाईली रेप्यूटेड मेडिकल कॉलेज है, सीएमसी वेलोर इज गेटिंग लॉट ऑफ फंडिंग फ्रॉम गेट्स फाउंडेशन, टॉप इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल कर लिया है। तो इसमें अभी हमको कोई इंडिपेंडेंट ये नहीं हो सकता है। और मोदी का ब्लेसिंग भी है इसके पास, इसमें दिया है, इसी किताब में दिया है कि मोदी से उसने अच्छा ये कर लिया है रिले पद्म भूषण। और इंडियन गवर्नमेंट के बिल गेट्स को पद्म भूषण भी दिया है। अब दिया है। ये देखिए, ये वी माइट ऑल्सो आस्क व्हाट द गेट्स फाउंडेशन वेनिंग इन्फ्लुएंस इंडिया माइट हैव meant for Microsoft in the same way that Bill Gates' philanthropic endeavors seem to create. We would argue that Gates Foundation significantly reduced the role in India might have diminished. Manjari Mahajan's research notes that when the Indian government gave Bill Gates the Padma Bhushan award for distinguished service, ostensibly for his philanthropic work, many government sources saw it as a recognition of his work with Microsoft. When Gates Foundation offered Prime Minister Modi a humanitarian award, गेट्स फाउंडेशन ने भी मोदी को अवार्ड दिया है, और इंडियन गवर्नमेंट ने भी बिल गेट्स को पद्म भूषण दिया है, इस किताब में दिया है भाई। अभी देखो, पब्लिसिटी नहीं करते क्योंकि शर्म आती होगी, पर अभी आप गूगल सर्च करो कि देखता हूँ मैं कि बिल गेट्स को पद्म भूषण मिला। अभी आप क्या करेंगे रेड्डी साहब, हम देखना। दोनों बातें करेंगे, पद्म भूषण मिला है भाई उसको, हाँ। हीरो। Hero. और ये मौकरी हो गया है, मौकरी हो गया है। They are making mockery of science and health. What is this nonsense? अरे यार, थोड़े बहुत तो पढ़ लिखे होंगे हमारे। ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल पार्लियामेंटेरियंस, यू आर इलेक्टेड बाय पीपल ऑफ इंडिया। भाई आप लोग प्रजा से ये चुने हुए लोग हैं। ये आपको तो देखिए, बताइए सर। yes, बताइए। Bill Gates and his wife Melinda Gates were awarded the Padma Bhushan, India's third highest civilian award in 2015। देखिए तमाशा, 2015 को बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स को पद्मा भूषण मिला है, बताइए। और 2013 को पार्लियामेंट, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने इनको दोषी पाया था। ये तो मेरे मजाक है भाई, को फिर वो लिंक इसका भेजिए सर, एक लिंक भेजिए मेरे को। का अभी ये इंक्वायरी। बिल गेट्स का भी, ये जो पद्म भूषण का, मैं दिखाता हूँ लोगों को किस तरह गुस्ताखी। व्हाट इज दिस हैपनिंग? मैं वही पूछ रहा हूँ, आरएसएस मोहन भगत जी, 100 साल का आप सेलिब्रेशन दिल्ली में कर रहे हैं। आप इस मुद्दे को आपने, क्योंकि आपने इसके पहले भी बोला, जिस तरह हमारी प्राथमिक जो है विद्या और हमारी स्वास्थ्य आम आदमी से दूर हो गया। ये क्लियरली स्टेटेड दैट एजुकेशन एंड हेल्थ बोथ हैव मूव्ड अवे फ्रॉम कॉमन मैन। नाउ 100 ईयर सेलिब्रेशन ऑफ आरएसएस, नाउ हमने यू टेक आपको इट अभी अवे। स्क्रीनशॉट भेजा है पद्मा भूषण वाला। अभी देखिए, इसका मतलब है, आप क्या है, 2013 को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने बोला है प्रोब होना चाहिए, हाई लेवल इंक्वायरी होना चाहिए गेट्स फाउंडेशन का, और 2015 को पद्म भूषण दे दिया है भाई गेट्स फाउंडेशन को। और गेट्स फाउंडेशन ने भी मोदी को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया है भाई, बहुत अच्छे रिश्ते हैं।
और देखिए ये पद्म भूषण वाला, देखिए ये कौन से किताब में मिला हमको? अमेरिकन जर्नलिस्ट के किताब में मिला। आप भी देखिए, जर्नलिस्ट होके मैं आज आपको तक भी नहीं मैं मालूम। हैरान हूँ सर, मैं क्या बोलूँ, मैं एक पत्रकार रहते हुए भी मैं हैरान हूँ, मुझे नहीं, इसके ज्ञान नहीं है। हाँ, पद्म भूषण मिला है भाई इसको। ही इज अ नेशनल हीरो। मुझे ज्ञान नहीं है सर। अब इसको अगर आप इसके बारे में निंदा करोगे तो वी विल बिकम एंटी नेशनल। कौन एंटी गेट्स नेशनल के। साहब, खत्म हो गया वो सब। हम जो है हाँ। मुद्दे, हमारी शो जो है आधार, कानून और संविधान के तौर पर कोई भी हमारे से कनेक्ट हो सकता है, हमारे को गलत साबित कीजिए, हम तैयार हैं, क्योंकि हम आधार देखिए कितनी बड़ी, ये पुस्तक भी बताता हूँ क्योंकि काली अपना को टाइम का जो प्रॉब्लम है, तो ये बड़ी है। देखिए ह्यूमनाइजेशन प्रोग्राम ऑलरेडी हम, वो 72 का भी निकालिए साहब एक, वो भी मैं तब तक ये बताता हूँ। बड़ी बड़ी खुलासा आज अमिताभ बनर्जी ने किया है। देखिए द बिल गेट्स प्रॉब्लम रेकनिंग विद द मिथ ऑफ द गुड बिलियनियर बाय टिम श्वाब। He has written this book. He has exposed him. Why Bill Gates is not suing him? Why World Health Organization is not suing him? Why India Public Health Foundation is not suing him? Why Modi and Amit Shah are calm, including the opposition parties? Have they no knowledge? And see here, Bill Gates and his wife Melinda Gates were awarded the Padma Bhushan, India's third highest civilian award in 2015. What a shame. What a shame. How can you award for Microsoft or whatever it is? He's not doing any business. I mean, it's all business, no? It's not come any, what should I say, service. It is not a welfare service. And then what is he doing with public health? It is shame. बेच चुके साहब, वो आ गया कुछ. So this is a big ये। exposure. And also the हाँ। book written by Kennedy. Kennedy is also exposing that. Also, I'll show you why Bill Gates is not suing them and why shamelessly India is trying to promote such a personality and who is indulging and in an fanciful vaccination trials killing people. याद रखिए हमारे सूरज है 300, पूरे साल भर हम उनको देख सकते हैं, कई ऐसे मौसम में कोई जब बदलाव और किस तरह की खाना हमारे किसान भाई हमको देते हैं, वो सही तरीके से, जो नॉर्थ हो या उत्तर हो या दक्षिण हो, हमारे भूमाता वहां पर किस तरह की अनाज हो सकती है, वो सब अगर ये सब मिलके हमारे किचन में हम लेते सूरज के साथ और संतुष्ट रहते कुटुंब के साथ, कोई रोग आ सकता है? तो ये सहज रोग निरोधक शक्ति है। तो सहज रोग निरोधक शक्ति से लोग स्वस्थ रह रहे हैं, खुशी से जिंदगी बिता रहे हैं। इसीलिए इनकी नजर स्वास्थ्य पे, और हमारे राजनीतिक दल जिस तरह बिकाऊ है हम देख चुके हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के द्वारा। अगर मैं गलत हो तो मेरे गलत साबित कीजिए। ऐसे कारपोरेट्स, इन राजनीतिक दल और अधिकारी गण और उनके संबंधी जो मीडिया चैनल से उनको पकड़ के एक बड़ी साजिश रच रहे हैं हमारे स्वास्थ्य के ऊपर और हमारे हकों के ऊपर। सो दे आर क्रिएटिंग, इट्स अ बिग कॉन्स्पिरेसी टू कंट्रोल आवर हेल्थ एंड टू इन्फ्रिंज आवर राइट्स by so called these billionaires, because our political parties, along with the executives, they're all sold out. If I'm wrong, correct me. My number is 9440465339. Why Bill Gates has not sued Robert F. Kennedy? He has written 2 or 3 books. Why Fauci is silent? He has exposed these people have endangered the world. Now, another book by the same American, in his chapter 14, 303 page, India, he has clearly exposed that Bill Gates has been awarded Padma Bhushan, shockingly, forgetting the 72nd Joint Parliamentary Committee report where it has indicted Bill Gates, Indian Council of Medical Research, and the government of the day for killing innocent Girijan girls. Where is SC/ST Girijan societies? Were you sleeping? When Modi was the Chief Minister of Gujarat, when Rajshekar Reddy was the Chief Minister of Andhra Pradesh, this Public Health Foundation of India has taken over the Health Ministry and Union Health Ministry and all those, and they are dictating terms shamelessly. And again, Bill Gates awards humanitarian award to Modi. सर जी आपने भेजा है वो? हाँ, वो 72 वाला भेजा है मैंने, इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल एथिक्स में, अभी व्हाट्सएप में भेजा है आपको। आप बात उसके करते ऊपर। रहिए सब, मैं वो बताऊंगा क्योंकि 4 मिनट ही है। हाँ।
इतनी बड़ी हाँ खुलासे के 70 बाद भी। सेकेंड इन्होंने वैक्सीन ट्रायल किया था, बताया नहीं था ट्रायल कर रहे हैं। और ये वल्नरेबल पॉपुलेशन में किया था, जो ट्राइबल गर्ल्स थे, पुअर गर्ल्स थे, हॉस्टल ऑर्फन और हॉस्टल में रहते थे। परमिशन भी नहीं लिया था पेरेंट्स का, और 7 लड़कियों का डेथ हो गया था। उन्होंने पहले तो इनकार कर दिया, बोला कोइंसिडेंटल है, जैसे कि अभी हमेशा करते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि अभी एचपीवी वैक्सीन फिर से पार्लियामेंट कमेटी पार्लियामेंट पैनल ने 22 अगस्त को रिकमेंड किया है कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में एचपीवी वैक्सीन इंक्लूड होगा। और मेरे को जहाँ तक खबर मिला है कि जितने प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं हमारे, गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर्स हैं, वहाँ पे एचपीवी वैक्सीन का स्टॉक आ गया है। ये देखिए, एक्सपोजर ऑफ द एचपीवी वैक्सीन बाई 72nd पार्लियामेंट्री कमेटी, इसमें दिया हुआ है। इंडियन जर्नल मेडिकल एथिक्स 2013 का है ये। और इसमें उस टाइम फिर भी थोड़ा पार्लियामेंट्री कमेटी थोड़ा स्ट्रांग था, इंडिपेंडेंट था। अभी तो पार्लियामेंट्री कमेटी खुद ही रिकमेंड कर रहा है एचपीवी ये वैक्सीन। देखिए, ये पढ़ के सुनाता हूँ। ह्यूमन राइट वायलेशंस, ऑल दिस लेटेस्ट पार्लियामेंट कमिटी, यू विल बी हेल्ड responsible if Supreme Court is not taking its suo moto. This collegium and the government are in collusion, because tomorrow it reaches your house, my dear judges of India, and all the parliamentarians, other parliamentarians. If you are in a sleeping syndrome, kindly wake up. I am reading the 72nd parliamentary joint parliamentary committee report. Why this latest parliament committee report has ignored this, and it is recommending HPV. Are you going to be held liable, responsible? This latest parliament committee, entire Indians should question them. How Modi and a government withdraw after COVID-19, after he signed certificates, he has closely stated he has withdrawn from there. 72nd report states that the path did a clear-cut violation of human rights of girl children and adolescents and is a serious breach of medical ethics. The standing committee recommends that National Human Rights Commission and National Commission for Protection of Child Rights may take up this matter further from the point of view of violation of human rights and child abuse. The committee is of the view that since this population under study was vulnerable, the utmost caution should have been exercised in the implementation of the study. It emphasizes that all guidelines and statutory requirements applicable to research on human participants should have been followed. It recommends that every effort should be made to expedite it. The 72nd report validates the campaign led by civil society that has highlighted the violations committed by the HPV trials and has been demanding action ever since deaths were reported in 2010. We hope that the government and agencies concerned will act on the standing committee's findings expeditiously. We are living in a world in which scientific and technological advances are being made at a rapid pace. See, these are the reference. So already it has indicted. And what is path? Path. ये What is गेट्स फाउंडेशन का, it? Is Bill गेट्स Gates. फाउंडेशन का है। Path is nothing but it is बिल गेट्स फाउंडेशन। ये भी बता रहा हूं, देखिए, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस demonstration projects were conducted by the Program for Appropriate Technology in Health, that is PATH, a Seattle based non-governmental organization in collaboration with Indian Council of Medical Research and the state governments of Andhra Pradesh and Gujarat. The projects were funded by Bill and Melinda Gates Foundation. The vaccines used, Gardasil and Cervarix, were donated to PATH by the manufacturing companies, in this case GlaxoSmithKline and Merck Sharp and Dome. These HPV vaccines were administered to approximately 23,000 young girls of between 10 and 14 years of age in the districts of Khammam in Andhra Pradesh and the district of Vadodara in Gujarat, from where he contested. Sir, your closing remarks. क्लोजिंग ये है कि हमारे पास अभी उसको पद्म भूषण दे दिया। इसको इंस्टेड ऑफ पनिशमेंट ही वाज गिवन द पद्म भूषण। 2013 में उसको इंडिक्ट किया गेट्स फाउंडेशन को, और 2015 को ही वाज गिवन द पद्म भूषण। इजंट दिस द स्लैप ऑन द फेस ऑफ ऑल इंडियंस कि इंडिया में वो इतना बड़ा ये किया, इतने लोगों को एक्सप्लॉइट किया, इतने गर्ल्स को एक्सप्लॉइट किया। तो अभी वो तो उसको बहुत बोल्ड हो जाएगा, वो तो इंडिया में कुछ भी कर सकते हैं।